लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 के लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है विच इज़ ऑफ प्राइमल एंड डुअल। दैट टॉपिक हैज़ बीन स्किप्ड फ्रॉम योर नोट्स ऑल्सो, थियोरी के नोट्स। सो फर्स्ट जहाँ पर थियोरी दी हुई है वहाँ पर लिख लो, आई डिक्टेट, उसके बाद समझाती हूँ। प्राइमल वर्सेस डुअल। लिखिए, फॉर एनी एलपीपी मॉडल called the primal model, there exist a companion model called the dual model. The dual will be opposite of the primal. That is, if the primal is a maximization problem, the dual will be a minimization problem. And vice versa. The dual of the dual is the primal itself. The solution of both the primal model and the dual model will be the same. Next line. Steps for conversion from primal to dual. The first step 1, write the primal LPP and ensure that all the constraints are in tune with the objective.
If not, multiply the constraint by -1, and change the inequality sign. Step 2. Write the primal in a matrix form with coefficients of variables and RHS of constraints. After this, also write the coefficients of variables in the objective function. In the same matrix. After this, also write the coefficients of the variables in the objective function in the same matrix. Step 3. Transpose the matrix. That is, convert rows into columns. And vice versa. Step 4. Write the revised LPP. From the transposed matrix. This is called the dual LPP. The objective of the dual LPP will be reverse of the primal. That's it. So it said, कोई भी LPP जो भी आप फ्रेम करते हो, जो भी कुछ आप पढ़ते हो, every LPP has an opposite LPP, or we can say a mirror image. हर एक प्रॉब्लम, हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक मिरर इमेज प्रॉब्लम भी होगा, विच विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट LPP. जो आपकी फर्स्ट LPP है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा वो. लाइक when we stand in front of mirror, our left hand becomes the right hand. Correct? Right hand becomes the left hand. So we are the same, but
the features they reverse, the place, the position reverse. Similarly यहाँ पर भी LPP का एक opposite ऐसा LPP होगा जिन दोनों का solution same निकलेगा, लेकिन जो rows दिख रही और से our objectives and the constraints when they are expressed in a form of matrix, आपको उस matrix के rows को आप column की तरह देख पाओगे, columns को आप rows की तरह देख पाओगे. It will be totally mirror image और opposite of the first matrix. हम पहले matrix को बोलते हैं primal और जो उसका opposite होता है उसे हम बोलते हैं dual. So suppose our LPP is maximize Z which is equal to say 100x plus 80y. Subject to, we have some constraints, say 2x plus 5y, this should be less than equal to 10, 4x plus 8y, this should be less than equal to say 7, x plus 15y should be greater than equal to 25. ये तीन हमारे पास में constraints हैं. This is the objective, these three are the constraints. Plus definitely non-negativity तो रहेगा ही. So non-negativity is not that important. This is the main primal. इस LPP को अगर हम बोले primal तो इसी का एक मिरर इमेज डुअल LPP भी एग्जिस्ट करता है. नाउ हाउ डू वी फाइंड दैट डुअल LPP, कैसे हम वो मिरर इमेज निकालेंगे? तो स्टेप्स में आपको सबसे पहले तो दिया है इंश्योर दैट ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स आर इन ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव. हम जब सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं हम बोलते हैं कि कोई एक हमारा कॉन्स्ट्रेंट इन ट्यून होना चाहिए, कोई भी एक. Not necessary कि सारे ही in tune with the objective हो, but at least one of the objectives should be in tune with the objective. जब हम conversion की बात कर रहे हैं primal से dual में, तब हम बोलेंगे सारे हमारे जो भी constraints हैं, all those constraints should be in tune with the objective. मतलब यहाँ पर हमारे ये constraint है, तीनों के symbol हमारे maximization के accordingly होना चाहिए. When the objective is maximization, symbol should be लेस देन इक्वल टू. हम देख सकते हैं दो का सिंबल तो लेस देन इक्वल टू है, इस एक का नहीं है. सो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लेस देन इक्वल टू. और हमने पहले भी देखा है ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है. सिंपली वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय -1 एंड वी चेंज द सिंबल. तो यही इन इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ -x minus 15y इज लेस देन इक्वल टू -25. करेक्ट. अभी मेरे तीनों जो कॉन्स्टेंट्स हैं ऑल द थ्री आर इन ट्यून विद मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. आफ्टर दिस द सेकेंड स्टेप इज टू राइट द कॉन्स्टेंट एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव इन अ मैट्रिक्स फॉर्म. इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म करें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहले हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स, लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव. पहले आएंगे कॉन्स्ट्रेंट्स, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव. मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा? तो सिर्फ इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, द नंबर्स, हम उनका मैट्रिक्स बनाएंगे. वेरिएबल्स को मैट्रिक्स में हम नहीं लेंगे. दैट मीन्स पहले कॉन्स्ट्रेंट में आएगा 2, 5 एंड 10. देखो लिखा होगा उधर स्टेप 2 में आपने. Write the primal in a matrix form with coefficients of variables and RHS of the constraint. Variables के coefficients और RHS ये लिखना है हमें मैट्रिक्स में. So coefficients are 2, 5 and the RHS is 10. Second वाली इन इक्वेशन या constraint के coefficients are 4 and 8 and the RHS is 7. Third constraint हमने इसको इधर कन्वर्ट कर लिया. इसके कोएफिशिएंट्स हम लिखें तो -1, -15, -25. ओके, तीनों कॉन्स्टेंट्स हो गए. आफ्टर राइटिंग द कॉन्स्टेंट्स देन वी राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव.
कॉन्स्टेंट्स तीनों कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव पे, और ऑब्जेक्टिव के जो कोएफिशिएंट्स हैं देन वी विल राइट दोज 100, 80। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी RHS एज सच। ओके, दिस इज द प्राइमल मैट्रिक्स। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इन डुअल मैट्रिक्स। कन्वर्जन के लिए स्टेप 3 में आपने लिखा है ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ट्रांसपोज करना आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में। ट्रांसपोजिशन सिंपली मीन्स आप रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो। मतलब ये ऐसा है, इसको यूं घुमा दो, सिर्फ 90 डिग्री पे इसको घुमा दोगे तो योर मैट्रिक्स विल बी ट्रांसपोज्ड। दैट मीन्स इसको अगर हम घुमाएं तो ये हो जाएगा 2, 4, -1, 100. The columns will become the rows will become the columns. 5, 8, -15 and 80, 10, 7 and -25। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। क्लियर है? ऐसे ही करते हैं हम ट्रांसपोजिशन। रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में हमने कन्वर्ट कर लिया। पहले ये सारे हमारी रोज थी इधर, अब वो सब हमारे कॉलम बन गए। ये जो रो अब दिख रही हैं वो पहले हमारे कॉलम्स थे। ये हमारा प्राइमल LPP हो गया और ये हो गया हमारा डुअल LPP। अब पहले हमने क्या किया था, LPP से मैट्रिक्स बनाया, अब मैट्रिक्स से हम LPP बनाएंगे। प्राइमल में हमने प्राइमल LPP से प्राइमल मैट्रिक्स बनाया, उससे हमने डुअल मैट्रिक्स निकाला। अब डुअल मैट्रिक्स से हम डुअल LPP फॉर्म करेंगे। ओके, हमने LPP से मैट्रिक्स कैसे बनाया था, तो पहले कॉन्स्टेंट्स लिखे थे। कॉन्स्टेंट्स में जो लास्ट वाला था वो हमारे RHS थे और बाकी के हमारे कोएफिशिएंट्स थे। अभी भी वैसे ही करेंगे। लास्ट रो को हम ऑब्जेक्टिव मानेंगे, इधर भी हमने लास्ट रो में ऑब्जेक्टिव लिखा था, यहाँ पर भी ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ओके, ये दोनों हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टेंट्स। इन द कॉन्स्टेंट्स ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये बनेगा हमारा RHS और बाकी के हो जाएंगे कोएफिशिएंट्स। पहले 2 ही कोएफिशिएंट थे, 2 ही वेरिएबल्स थे x और y, अब 3 वेरिएबल लगेंगे हमें। विल रीनेम देम। अब हमारे वेरिएबल x y नहीं रह जाएंगे क्योंकि अब ऑपोजिट और चेंज हो गई हमारा मैट्रिक्स या LPP, तो वेरिएबल्स का भी हम नाम चेंज कर देंगे। सो वी कैन कॉल देम एज ABC और एनीथिंग, MNO, कुछ भी आप नाम उनका दे सकते हो। अगर हम ABC बोलें तो हमारे कॉन्स्टेंट्स को हम लिख पाएंगे एज 2A + 4B - C। दिस विल बी द RHS। अब सिंबल कौन सा आएगा, ऑपोजिट। जो यहाँ पर सिंबल्स थे उनके ऑपोजिट अब इधर आएंगे। मतलब उधर अगर लेस देन इक्वल टू था तो अब हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली सेकेंड कॉन्स्टेंट 5A + 8B - 15C। अगेन सिंबल विल बी opposite, greater than equal to, and this will be the RHS 80। ये जो लास्ट वाली रो है जिसमें RHS है ही नहीं, ये एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, RHS नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। सो वील राइट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव विल अगेन बी ऑपोजिट। पहले मैक्सिमाइजेशन था, प्राइमल वाज मैक्सिमाइजेशन, तो डुअल हो जाएगा मिनिमाइजेशन। सो नाउ द ऑब्जेक्टिव विल बी मिनिमाइज Z1 is equal to 10A + 7B - 25C। आया समझ में? इतना इजी है ये। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19th। 19th में हमें डुअल फॉर्मुलेट करने के लिए बोला है। फॉर्मुलेट द डुअल फॉर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्राम। वी हैव मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। लास्ट में बोला है ओनली फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड। सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मुलेट ही करना है। प्राइमल LPP हमें दी गई है, विच इज
मैक्सिमाइज z is equal to 100x1 This has 2x3s. 8x3 plus 4x3. Will it be 12x3 or we'll just remove 1? no remove 1 8x3 एंड 4x3 दो अलग अलग दिया हुआ है सो जस्ट कट 4x3 एंड मेक दैट 80x3 बाकी सब फिगर्स बड़े हैं सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8x3 राइट 80x3 so the objective is 100x1 plus 90x2 plus 80x3 plus 60x4 subject to the constraints are 6x1 plus 4x2 plus 8x3 plus 4x4 this is less than equal to 140 हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन ही हमें सारे सिंबल चाहिए कन्वर्जन करना है तो ऑल द कॉन्स्टेंट शुड बी इन ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव सारे कॉन्स्टेंट्स का सिंबल लेस देन ही होना चाहिए और है भी क्वेश्चन में तीनों जो कॉन्स्टेंट दिए हैं तीनों का सिंबल लेस देन इक्वल टू ही है 10x1 plus 10x2 plus 2x3 plus 6x4 is less than equal to 120 10x1 plus 12x2 plus 6x3 plus 2x4 is less than equal to 50 and non-negativity is x1, x2, x3 and x4 greater than equal to 0. Now we'll frame matrix of this primal LPP. इसको हम प्राइमल मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं मैट्रिक्स में पहले आएंगे कॉन्स्टेंट्स उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स में कोएफिशिएंट्स एंड आरएचएस सो वील हैव 6 4 8 4 140 अगर मान लो कोई ऐसा कॉन्स्टेंट हो जिसमें कोई एक वेरिएबल ही नहीं है से अगर सेकेंड वाले में वी डू नॉट हैव x4 ये फिगर नहीं हो मान लो it is 10x1 plus 10x2 plus 2x3 is less than equal to 120 तो उस केस में इसका मतलब x4 का कोएफिशिएंट इज 0 we'll take 0 in its place okay अभी इस केस में we have 10 10 2 6 120 then we have 10 12 6 2 50 तीनों कॉन्स्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स और आरएचएस आ गए इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव के कोएफिशिएंट विच इज 100 90 80 60 ये हो गया हमारा मैट्रिक्स देन वी विल ट्रांसपोज द मैट्रिक्स टू फॉर्म डुअल मैट्रिक्स which is a transpose of primal matrix. So all the columns will now become the rows. 6, 10, 10, 100, 4, 10, 12, 90, 8, 2, 6, 80, 4, 6, 2, 60, 140, 120, 50. This will be the dual matrix. Now from here we will find the dual LPP. जो स्टार्टिंग के चारों हमारे चारों जो रोज हैं इन सब के हमें कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे नाउ वील चेंज द वेरिएबल्स नेम्स वेरिएबल्स पहले x1 x2 x3 बोले थे अब हम y1 y2 y3 y4 चाहिए वी कैन नेम इट लाइक दैट कुछ भी आप नेमिंग कर सकते हो सो इफ वी टेक देम एज y1 y2 y3 हमारा ऑब्जेक्टिव एंड देन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स विल बिकम
6y1 plus 10y2 plus 10y3. The symbol will be now greater than equal to. प्राइमल में द सिंबल वॉज लेस देन इक्वल टू, तो डुअल में हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 100. देन 4y1 प्लस 10y2 प्लस 12y3 अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 90. 8y1 प्लस 2y2 प्लस 6y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 80. एंड 4y1 प्लस 6y2 plus 2y3 is greater than equal to 60. ये हो गए सारे कॉन्स्टेंट्स. इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव हमारा ओरिजिनल था प्राइमल का मैक्सिमाइजेशन, तो डुअल का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मिनिमाइजेशन. सो मिनिमाइज z डैश इज इक्वल टू लास्ट वाली जो हमारी रो है, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव रो. 140y1 प्लस 120y2 प्लस 50y3. एनी डाउट्स? इजी है. सो दिस कंप्लीट्स अवर एलपीपी. क्वेश्चन नंबर 20 हम लास्ट क्लास में ही कर चुके थे. ये लिख लो.